Hello everyone, today we will start our chapter number 13, Light, Class 8. Now, the world is largely known through the sense of sight. Sight is one of the most important sense. Through it we see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people, and so many other things around us. We also see clouds, rainbow, and birds flying in the sky. At night, we see the moon and the stars. You are able to see the word and sentence printed on this page. How is seeing made possible? कि everything which is present in our surrounding we can see. हम वो देख सकते हैं. तो what is the reason why we can see everything which is present in our surrounding? What makes things visible? Have you ever thought how we see various objects? You may say that I see the objects, but can you see any objects in the dark? लाइट में तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, बट क्या डार्क में भी हम कोई ऑब्जेक्ट इजीली विजिबल कर सकते हैं? इट मीन्स that eyes alone cannot see any objects. It is only when light from an object enter our eyes that we see the object. The light may have been emitted by the object or may have been reflected by it. कि it means कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो what is the reason? तो due to कि emitted may have been emitted by the object, जो light है, the light may have been emitted by the object or may have been reflected by it, कि जो emit हो रही है और after that reflect हो रही है. तो this is the reason कि कोई भी जो light है वो emit हो रही है in our eyes और reflect हो रही है, तो हम कोई भी object है वो easily visible कर सकते हैं. You learn in class 7 that a polished or a shiny surface can act as a mirror. A mirror changes the direction of the light that falls on it. जो shiny and polished surface, mirror की कैसी surface होती है? shiny होती है और polished surface. तो उसका example क्या हमारा mirror, कि कोई भी shiny हो या polished surface हो तो वो कैसी है? For example mirror. A mirror can change the direction of the light that falls on it. कि mirror क्या कर रहा है? This is the ability of mirror. Mirror can change the direction of the light. Mirror क्या कर सकता है? Direction of the light को क्या कर रहा है? वो change कर सकता है. Can you tell in which direction the light falling on the surface will be reflected? Let us find out. Law of reflection. So there are some law of reflection. So first of all, we find out कि how mirror reflect, how mirror change the direction of the light. कि जैसे for example, this is a mirror. ये क्या हमारी mirror है? Okay. After that, this is a emitted light. यानी ये कौन सी है? Incident light. After that, when it hit या when it pass through the mirror, it can change. Mirror can change its direction. तो ये कैसे? ये इस डायरेक्शन में जा रही थी लाइट और मिरर से पास आउट हुई. जैसे ही मिरर से पास आउट हुई तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया. ओके, तो इट मींस मिरर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट. After striking the mirror, the ray of the light is reflected in another direction. कि जैसे ये इंसिडेंट रे थी, ये एमिटेड रे थी, ठीक है. आफ्टर दैट जैसे ही ये स्ट्राइक हुई ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ये मिरर की सरफेस पे क्या हुई? स्ट्राइक हुई. तो आफ्टर दैट जैसे ही स्ट्राइक हुई तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई. ओके, तो व्हेन आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द अनदर डायरेक्शन. तो ये क्या हो गई? दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई. दूसरे डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई. द लाइट रे which strike any surface is called the incident ray. Okay, this ray is known as the incident ray. इस ray को हम क्या कहेंगे? Incident ray. कि the light ray which strike any surface is called the incident ray. कि ये मिरर है, मिरर की किसी भी सरफेस पे ये जो रे स्ट्राइक कर रही है, this is known as the इंसिडेंट रे. इस रे को हम क्या कहेंगे?
इंसिडेंट रे, ओके। और आफ्टर दैट द रे that comes back from the surface after reflection is known as the reflected ray, कि मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट हुई, आफ्टर इसके बाद क्या हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई स्ट्राइक होने के बाद मिरर के सरफेस से, तो दिस रे इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे, ओके। तो देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट इज इंसिडेंट रे एंड सेकेंड इज रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे विच स्ट्राइक, या हम यूं कह सकते हैं कि जो रे विच इज कम आउट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है, ओके। एंड विच रे विच स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द मिरर, दिस इज नोन एज द इंसिडेंट रे। उस रे को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, ओके। द लाइट विच इज स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, दिस इज नोन एज द इंसिडेंट रे, ओके। आफ्टर दैट, जब स्ट्राइक के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, a ray which is reflected from the mirror, this is known as the reflected ray। उस रे को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो टू रेज हो गई, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। Draw lines showing the position of the plane mirror, the incident ray and reflected ray on the paper while the help इसके अंदर remove the mirror and the comb। देखो इसके अंदर दिस इज द, ये हमारा मिरर है, ओके। ये मिरर में ये हमारी जहां से कोई ऑब्जेक्ट से ये आ रही है इंसिडेंट रे, आफ्टर दैट ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। Draw a line making an angle of the 90 to the line representing the mirror at the point where the incident ray strike the mirror, this line known as the normal। अब after that कि when this is the mirror, this is the incident ray and this is the reflected ray, ये वाली हमारी कौन सी है, this is the incident ray और ये हमारी कौन सी है, reflected ray। After that we make a line, हम यहां पर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल, ओके। कि क्या है कि जो हमारा रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर, दिस नोन इज द नॉर्मल। कि यहां पे कौन सी है, ये इंसिडेंट रे है, दिस जिस पॉइंट पर आके स्ट्राइक हुई है, ठीक है, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर आकर स्ट्राइक हुई है उस पॉइंट से हम एक जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज नोन एज द नॉर्मल। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। Between the normal and incident ray is called the angle of incident। अब ये देखो यहां पे there are two angles, यहां पे हम two angles की बात करते हैं। The first is this is the angle I and this is the angle R। यहां पे हम दो एंगल्स की बात करते हैं, फर्स्ट एंगल इज एंगल I, द सेकेंड एंगल इज एंगल R, ओके। नाउ व्हाट इज द एंगल I, एंगल I क्या है, तो एंगल I इज फॉर्म्ड, कहां पे फॉर्म हो रहा है, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज normal। The angle which is present between the incident ray and normal, this angle is known as the angle of incident। इसे हम क्या कहेंगे, या तो एंगल I क्या है, एंगल I where it is present, एंगल I क्या होता है, between the, कहां पे होता है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। कहां पर है ये एंगल I, कहां पर प्रेजेंट है, ये हमारी कौन सी थी, इंसिडेंट रे थी, ओके। तो ये इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल ड्रॉ हो रहा है, दिस इज नोन एज द एंगल I। इसे हम क्या कहेंगे, एंगल I। सिमिलर एंगल R, तो एंगल R किसके बीच में होगा, बिटवीन, अब ये हमारी कौन सी थी, रिफ्लेक्टेड रे, यहां से ये कौन सी, ये रे निकल रही है ना, तो दिस रे इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा क्या है, नॉर्मल। द एंगल विच इज प्रेजेंट बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ओके, तो बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ओके, कहां कहां पे हुआ कि एंगल आई और एंगल आर, यहाँ पे टू इंपॉर्टेंट फोर टर्म्स आ गई हमारे पास यहाँ पे। द फर्स्ट इज इंसिडेंट रे, सेकंड इज रिफ्लेक्टेड रे, थर्ड इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द फोर्थ इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। ओके, तो यहां पर ये थ्री जो फोर थिंग्स है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेफिनेशन क्या है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट भी कह सकते हैं, एंगल आर या फिर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। Between the normal and incident ray is called the angle of incident, angle I. The angle between the normal and the reflected ray is known as the angle of reflection या फिर angle R. Measure the angle of incident and the angle of reflection. Repeat the activity several times by the changing the angle. ये देखो यहां से हमारी रे कहां से आ रही है, ये रही, तो दिस इज द इंसिडेंट रे, ये वाली हमारी कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे। एरो कहां शो कर रहा है, ये रहा एरो, तो इसका मतलब रे कहां से आ रही है, फ्रॉम दिस साइड। ओके, तो दिस इज द इंसिडेंट रे। आफ्टर दैट दिस इज द स्ट्राइकिंग पॉइंट, ये वाला हमारा कौन सा है, स्ट्राइकिंग पॉइंट, जहां पर इंसिडेंट रे क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है। ओके, नाउ फिर ये क्या हो रही है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा एरो, तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, एंड दिस इज नॉर्मल, जहां से हमने जो इंसिडेंट रे के स्ट्राइकिंग पॉइंट है वहां से जो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, एंड दिस इज द एंगल आई एंड दिस इज द एंगल आर। क्लियर। अब नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? Do you see any relation between the angle of incident and the angle of reflection? Are they approximately equal in the experiment is carried out carefully? In seeing that the angle of incident is always equal to the angle of reflection. This is one of the law of reflection. अब इसमें क्या है, there are two law of reflection कि जो हम law of reflection पढ़ रहे हैं। तो the first law of reflection is angle of incident is always equals to the angle of reflected, मतलब angle I is always equals to angle R. ओके, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। जो ये दोनों एंगल होंगे, ये रहा एंगल आई और एंगल आर, बोथ आर इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, बोथ एंगल आर इक्वल। ओके, क्योंकि दोनों रेस क्या है, इक्वल है, तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। Now the next, when the whole sheet of paper is spread on the table, it represents one plane, the incident ray, the normal at the point of incident and the reflected ray are all in this plane. When you bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie. Then you do not see the reflected ray. What does it indicate? It indicates that the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. कि इसमें क्या है कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल सब किसी पे है, एक सिंगल एक प्लेन पे है। ये देखो, ये हमारा इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ऑल आर लाइन ऑन अ प्लेन, ये सभी किस पर है, एक प्लेन सरफेस पे है। तो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
What is the first law of reflection? Angle I is always equals to the angle R. It means the angle of incident is always equals to the angle of reflected. Now the second law, incident ray, normal and the reflected all are lying on a same plane surface. कि दोनों किस पे होते हैं? सेम प्लेन पर होते हैं. ठीक है? This is the second law of reflection. Paheli and Brujo performed the above activity outside the classroom. Brujo remembered that in class 7 he had studied some features of the image of an object formed by a plane mirror. Paheli asked him to recall those features. Okay, now these are the some features. First, was the image erect or upside down? कि इमेज क्या है कि was the image erect है या invert है. Okay, now second, was it of the same size as the object? क्या ये ऑब्जेक्ट की सेम साइज की है या नहीं. ओके, डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वाज in front of it. कि डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वाज in front of it. कि जितनी डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही डिस्टेंस के ऊपर बिहाइंड, जो मिरर के बिहाइंड में भी ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या. जैसे फॉर एग्जांपल कि वॉज द इमेज इरेक्ट और डाउन. कि जैसे या तो इरेक्ट मतलब स्ट्रेट बन रही है या फिर इनवर्ट बन रही है. मिरर की जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? स्ट्रेट मतलब इरेक्ट बन रही है या फिर इनवर्ट बन रही है. वॉज द सेम साइज कि जितनी साइज का ये ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज की इमेज बन रही है क्या. कि मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो जो इमेज बन रही है वो भी इतनी ही बड़ी बन रही है या उससे छोटी बन रही है या फिर उससे बड़ी बन रही है. इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस कि मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है ये यहां से इतनी डिस्टेंस पे रखा है तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो जो इमेज फॉर्म होगी वो ही इतने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म हो रही है क्या बिहाइंड द मिरर. या फिर डिस्टेंस कम है या फिर डिस्टेंस ज्यादा है. कि मतलब जैसे हमने ये एक कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा. ओके ना, तो जो अगर यहाँ पर कोई इमेज बन रही है उसकी तो वो भी ये हमारा मिड पॉइंट है. ओके, यहाँ पे हमारा क्या है? मिरर है. तो क्या इस मिरर से जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो भी क्या 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है या फिर उससे ज्यादा या फिर उससे कम. ओके, तो क्या है इन सबके की डिस्टेंस पे बन रही है या नहीं. कुड इट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन? क्या हम उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं या नहीं. दीज आर सम क्वेश्चन. तो इनके क्वेश्चंस के लिए हम क्या करें, एक परफॉर्म करें. लेट अस अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट द. इसके अंदर हम एक एक्टिविटी करते हैं. दिस इज अ एक्टिविटी. ओके, ये है, इसमें हमने क्या कर रखा है, दिस इज अ प्लेन मिरर. ओके, ये क्या है? पी एंड क्यू. ये क्या हमारा एक प्लेन मिरर है. आफ्टर दैट इसमें दीज आर इंसिडेंट रे. ये क्या है? हमारी इंसिडेंट रे है. ओके, एरो कहां लगा हुआ है? यहाँ पे. तो दीज आर, इसको हमने क्या नाम दिया? पी और क्यू. ओके, द मिरर इज पी और क्यू. मिरर का नेम क्या है? हमने क्या नेम दिया उसको? पी एंड क्यू. आफ्टर दैट दिस इज द ओ पॉइंट. इस ओ से क्या आ रही है? एक इंसिडेंट रे आ रही है. तो दिस इज द ओ ए एंड दिस इज द ओ सी. बोथ आर क्या है? इंसिडेंट रे. ओ ए एंड ओ सी बोथ आर इंसिडेंट रे. दोनों क्या है? इंसिडेंट रे है. अब ये जो ओ ए आई इंसिडेंट ये रिफ्लेक्ट हो गई इस डायरेक्शन में, तो ये क्या बन गया? ए बी. दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. सिमिलर ओ सी आई वो रिफ्लेक्ट हो गई इन दिस डायरेक्शन ओ बी. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? सी बी. ओके, तो दिस इज द ओ ए. कि जैसे ही ये मिरर आई ये इंसिडेंट रे आई ये रिफ्लेक्टेड हो गई. ठीक है, ये हमारी क्या थी? ओ ए. ये हो गई हमारी बी. सिमिलर सेम ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट ए सेम ही है, इस ऑब्जेक्ट से एक और रिफ्लेक्टेड रे आई. ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया?
ओ सी। अब ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गई इन दिस डायरेक्शन में, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, सी एंड डी। ओके, तो दीज आर इंसिडेंट रे एंड दीज आर रिफ्लेक्टेड रे। अब इसके बीच में हमने क्या ड्रॉ कर दिया, दिस इज नॉर्मल। ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया है, एक नॉर्मल। इन दोनों रे के बीच में ये एक नॉर्मल, इन दोनों रे के बीच में हमने ये क्या कर दिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ओके, नाउ अब लेट अस अंडरस्टैंड कि अब इसमें हमें क्या करना है कि हमारा जो क्वेश्चन था, वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड। अब इसमें हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है, तो इसमें इमेज हमारी इस डायरेक्शन में तो फॉर्म नहीं होगी। ओके, ये जैसे ही रिफ्लेक्ट हुई लाइट, रिफ्लेक्ट लाइट को अगर हम आगे और ज्यादा आगे हम एनलार्ज करेंगे, बढ़ाएंगे, तब भी हमें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं होगा, इमेज फॉर्म नहीं होगी। जब हम इन रेस को बैक साइड ऑफ द मिरर, ये देखो ये दिस इज द मिरर, और बैक साइड ऑफ द मिरर जब हम इन रेस को बढ़ाएंगे, तब एक पॉइंट पे जाकर हमें क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। ओके, तो जैसे ही हम किसी भी मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है इमेज, तो या तो वो हमें इन फ्रंट ऑफ द इमेज मिल रही है या फिर बैक साइड। तो कहां मिल रही है हमें, बैक साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, तो हमें इमेज कहां फॉर्म हो रही है, बैक साइड ऑफ द मिरर हमें क्या हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है। अब ये देखो सेम डिस्टेंस पर है क्या, ये इतना डिस्टेंस हमारे इसकी है और ये बैक साइड की इतनी डिस्टेंस है, तो क्या सेम डिस्टेंस है, तो ये हमारी इतनी डिस्टेंस पे है, ये हमारा ये हम मेजर करेंगे स्केल से, जब हम मेजर कर पाएंगे तभी हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे कि दोनों डिस्टेंस क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है या फिर नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू लुकिंग की दो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है, दोनों इमेज कैसी है हमारी, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, तो दीज आर द कि इस तरीके से अगर हम कोई एक्टिविटी शो करते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि इमेज कहां फॉर्म हो रही है, बैक साइड ऑफ द मिरर हो रही है, सिमिलर साइज की हो रही है, डिस्टेंस सिमिलर है। ओके, तो इस तरीके से हम एक्टिविटी के थ्रू क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। Now, you may recall that in an image formed by a mirror, the reflect of the object appear on the right and the right appear on the left. This is known as the literal inversion. कि जब हम मिरर के अंदर, हम वैसे भी अगर ऑब्जर्व करें, अगर हम मिरर के अंदर ऑब्जर्व करें तो कोई हम वर्ड लिखते हैं, ओके, तो वो हमें मिरर के अंदर उसका जस्ट ऑपोजिट लगता है, कि मतलब वो उसकी डायरेक्शन दूसरी लगती है। कि जैसे अगर हमने इस तरीके से ई लिखा है तो मिरर में हमें वो कैसा लगता है, ई। ओके, तो उसकी डायरेक्शन, इसका साइड कैसा लगता है, चेंज लगता है, लेफ्ट राइट में लगता है, राइट कैसा लगता है, लेफ्ट में। तो दिस इज नोन एज द लेटरल इन्वर्जन। इसे हम क्या कहेंगे, लेटरल इन्वर्जन। Now after that there are two type of reflection, regular and diffuse reflection. Okay, diffuse reflection या फिर हम इसको क्या कहेंगे, irregular reflection. Okay, तो basically when all the parallel rays reflected from a rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as the diffuse या irregular reflection. जैसे for example this is a irregular surface, ये कैसी है, अप डाउन सरफेस है, प्लेन सरफेस नहीं है। ओके, तो जब यहां से दिस इज द इंसिडेंट रे, आफ्टर दैट रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, ये इस तरफ आ गई, ये इधर चली गई। इट मीन्स कि ये जो रेज है ये एक प्रॉपर पैरेलल वे में नहीं है, तो दिस इज नोन एज द डिफ्यूज reflection. Okay, now the similar regular reflection, on the other hand, reflection from a smooth surface like that of a mirror is called regular reflection. कि ये जो मिरर है यहां से अगर कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये आई इंसिडेंट, ये पैरल, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, तो जितनी भी इंसिडेंट रेज आ रही है सब रिफ्लेक्टेड होकर किसमें कन्वर्ट हो रही है, पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो दिस इज नोन एज द रेगुलर
रिफ्लेक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्शन टू टाइप्स के रिफ्लेक्शन है, एक इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और एक हमारा क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑलवेज अकर ऑन अ plane surface, okay, and diffuse reflection occur on a irregular surface, okay, तो this is the main difference। remaining हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।